دادا بھائی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام کنوکیشن کی تقریب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں. I've been knowing this, his work, his family's work, more than 2 decades, 3 decades, long. So, Alhamdulillah, we are blessed to have him as a Karachiite and his contribution towards the people of Pakistan. Ladies and gentlemen, I must explain one thing here, and to all the very, very humbly submitting this to the faculty of this institution, that yes, we are giving them, and to the students as well, we are giving them degrees today. They'll be passed out and will be going into the society and will be involved in their practical life, and most of them must have already been involved in their practical life. But this piece of paper, which is the degree, we must ponder upon, we must think, we must try to be a good human being as well. The characteristic of any human being should come first. We must develop the positive characters within each and every soul who are living here. Otherwise, these education, these knowledge, with the bad character, with the bad circumstances, trust me, it becomes more lethal. Today in Pakistan, whatever negativities we have is not being done by the poor or illiterate people. They are being done with the characterless, educated people. And we face every day. So let's give a prime objective and prime importance, a paramount importance to one's character, to good characters of a person. A person with a good character and with the education, then only we will be able to achieve what the world has achieved so far. We would be able to follow the world. Otherwise, sorry to say, things are not going to go in a right direction. Since the cameras are here, let me just say a few things in a native language so that میری بات جو ہے وہ دور تک جا سکے. ان کیمروں کے آگے صرف یہاں پر موجود لوگ ہیں, وہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں میری آواز یہ جا رہی ہوگی سوشل میڈیا اور ان تمام کیمروں کے ذریعے. اور وہ یہ آج تک میں نے کسی کیریکٹر والے ایجوکیٹڈ اسکل آدمی کو بیکار نہیں دیکھا. اینڈ مائنڈ یو کہ یہ آج کی دنیا اٹس اے گلوبل ولیج. اس شہر میں اسکل رکھنے والے لوگ, اسکل والے لوگ 10 سال کے بچے آج اس فون پہ آج کی اس دنیا کی ٹیکنالوجیز کو جانتے اور مانتے ہوئے ہزاروں ڈالرز کما رہے, ہزاروں ڈالرز کما رہے. تو آج کی دنیا قابل لوگوں کے لیے پورا سمندر ہے, اور کسی بھی ملک میں آج اس ملک میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو وہ اپنی جابز دے سکے. لوگ اپنے ملک, ہمارے ہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے. پاکستان اس وقت دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے. صرف 5 سالوں کے بعد ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے, ہم دنیا کے 6 بڑے ملک ہو جائیں گے. اور ان 30 سال اور اگلے 25 سالوں میں پاکستان will become the third largest country in the world. 6.19 million ہماری گروتھ ہے ہر سال. 62 لاکھ کے قریب ہر سال ہمارے ہاں بیبیز کی جو ہے وہ پیدائش ہے. ہم دنیا میں ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہمارے ہاں پاکستان میں ایڈ ہو رہی ہے. 5.8 million is New Zealand's entire population. Every year 6.19 million babies we are producing. So اتنی بڑی کیپیسٹی, اتنی بڑی پاپولیشن, ہر سال یہ انڈکشن. تو اس ملک کی کیپیسٹیز میں آپ کہاں جائیں گے, کس جگہ جائیں گے؟ So we have to think globally. We have to have the education
which is not just being recognized and being acknowledged only within the country but to all over the world. آج کی دنیا گلوبل ولیج ہے. آج کی دنیا کی نالج ہمیں چاہیے, آج کی دنیا کے, اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں خود کو اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے. اپنے ایک اچھے کردار والا انسان پوری اپنی سوسائٹی کو, معاشرے کو چینج کر سکتا ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کردار کی اہمیت کو واضح کر کے دنیا کو دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سالوں کے بعد نبوت ملی ہے. نبی وہ بنے 40 سالوں کے بعد, لیکن اس بالکل خراب گندے معاشرے میں جہاں پر ہر طرح کی خرافات موجود تھیں, آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بننے سے پہلے, پیغمبر بننے سے پہلے صادق اور امین تھے. نبی بننے سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کنوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں. بتائیں کہ شہر قائد کی مسائل حل کرنے کے لیے میئر کراچی متحرک ہیں. بیرسٹر مرتضی وہاب کا الحمید اور خواجہ اجمیر نگری پمپنگ سٹیشن کا دورہ. میئر کراچی نے دونوں پمپنگ سٹیشنز پر جاری کام کا معائنہ کیا. میئر کراچی نے اس موقع پر گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں. میئر کراچی کا پرتپاک استقبال کیا گیا. بات کرنے کے لیے شعیب مختار ہمارے ساتھ ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, شہر قائد کے مسائل حل کرنے کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں. میئر کراچی نے الحمید اور خواجہ اجمیر نگری پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا ہے اور دونوں پمپنگ اسٹیشن پر جاری کام کا معائنہ کیا ہے. 190 ملین کی لاگت سے دونوں پمپنگ اسٹیشن کی سر نو تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے. دونوں پمپنگ اسٹیشن کے فعال ہونے سے نارتھ کراچی کی 5 یوسی کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ بہتر ہوگی. میئر کراچی کی جانب سے کریم آباد انڈر پاس کا بھی دورہ کیا گیا ہے اور انہوں نے انڈر پاس پر جاری کاموں کا معائنہ کیا ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کے تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہے. شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے محکمہ بہبود آبادی کے 19 گریڈ کے 5 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ریجنل ڈائریکٹر بہبود آبادی سکھر خالد معراج کو ضلع غربی کراچی تعینات کر دیا گیا. ضلع بہبود آبادی افسر غربی کراچی زاہد بیگ کو ڈائریکٹر بہبود آبادی PPSO سندھ تعینات کیا گیا. ڈائریکٹر بہبود آبادی سندھ نسیم گلشن غوری کو ریجنل ڈائریکٹر بہبود آبادی کراچی لگا دیا گیا. ضلع بہبود آبادی افسر سکھر جاوید علی ٹالپور کو ریجنل ڈائریکٹر بہبود آبادی سکھر تعینات کر دیا گیا, جبکہ ضلع بہبود آبادی افسر جیکب آباد اصغر علی آرائی کو مٹیاری مقرر کر دیا گیا. سندھ حکومت نے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن سمیت 4 محکموں کے 18 گریڈ کے ڈپٹی سیکریٹریز اور دیگر افسران کو سینئر مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کروانے کا فیصلہ کر لیا. افسران 22 دسمبر 2025 سے کورس کے لیے جائیں گے. افسران کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. افسران کو تیسرے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس پر بھیجا جائے گا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن بہبود آبادی سماجی بہبود اور ویمن ڈیولپمنٹ کے افسران کو نیپا سینٹر گلشن اقبال میں کورس کرایا جائے گا. جن افسران کو منتخب کیا گیا ہے ان میں یار علی شاہ, نور احمد, آصف علی خاص خیری, آصف رضا چانڈیو, نعیم احمد سہتو, فہیم احمد چاچڑ, سید جہانگیر علی شاہ, محمد عاصم خان, مبارک بانو اور دیگر شامل ہیں. کراچی کے معروف تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں 15ویں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جہاں مستقبل کے ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نوجوانوں کے کردار پر اظہار خیال کیا گیا. ایونٹ میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین, طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی. کانفرنس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی علی راشد تھے, جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر حکومت کے ویژن سے آگاہ کیا. اس حوالے سے وسیم افتخار کی رپورٹ. کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں 15ویں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی. ایونٹ میں ملکی و غیر ملکی ماہرین, طلباء اور اساتذہ کی شرکت. کانفرنس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی
अली राशिद थे, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग पर हुकूमत के विजन से आगाह किया। अली अरशद बोले, सिंध हुकूमत ने IT टावर मुतारफ कराया, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। IT के शोबे में संजीदगी से काम कर रहे हैं। हमेशा लोग शिकायत करते थे कि बहुत डिले होता है, फिर कुछ ये भी कहते थे करप्शन या सिफारिशें चलती हैं। तो सबसे पहले काम मैंने ये किया थ्रू AI, उन सबको ऑनलाइन कर ली, और वहाँ AI का एजेंट है which vets the CV, आपकी क्राइटेरिया देखता है और बताता है, और then if you meet the criteria तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो हमें पता है कि AI पे कोई सिफारिश नहीं चलती। अली राशिद का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हुकूमती उमूर में शफाफियत लाई जा रही है। जो काम पहले 12 महीनों में होते थे, आज वो AI की मदद से 1 माह में मुकम्मल हो रहे हैं। IT और IA के तालिबे इल्म विजारत में आकर मुफीद मशवरे दें और अमली किरदार अदा करें। ये दौर मायूसी का नहीं, मौके का है। I would like to invite any of the students here जो हमारी मिनिस्ट्री में आके would like to help out, suggestions दे सकें। देखें, you guys are the experts here। साइबर सिक्योरिटी की आपकी फैकल्टी I'm sure कुछ काम कर रही होगी, AI पे कर रही होगी। The Sindh government would love to be part of those initiatives। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शादियों का सीज़न उरूज पर है, मगर फर्नीचर मार्केट में ख़रीदारों की कमी ताजरों के लिए बाइस तशवीश बन गई। महंगाई ने आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर कर दी है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मजदूर कॉलोनी की मशहूर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट, जहां कभी शादियों के सीज़न में कदम रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां पर सन्नाटा है। शोरूम्स में रखे महंगे सोफ़े और बेड सेट मौजूद, लेकिन ख़रीदार गायब। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर कहते हैं कि शादियों का सीज़न होने के बावजूद सेल ना होने के बराबर है। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान हो जाते हैं। इस टाइम हालात हैं वो मैशियत के बहुत तबाहकुन हैं और महंगाई जो है वो उरूज के ऊपर है। इस टाइम जब हमारे यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स आते हैं तो वो यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना बजट देखते हैं। लोगों का बजट इतना है नहीं, महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। इस टाइम माल महंगा होने की वजह से जो है वो वालिदैन अपनी बच्चियों को वो सहूलतें नहीं दे सकते जो वो देना चाहते हैं। ताजिर मलिक राशिद का कहना है कि हालिया दिनों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तो ख़त्म हो गई, मगर उसके असरात अब भी बरकरार हैं। हड़ताल से जो इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई है, इसमें जो फर्नीचर का ये जो हमारा माल सप्लाई आ रहा था उस साइड से, ये समझ लें कि ब्लैक रेट पे चला गया। हर शीट पे 200-300 रुपये बढ़ गए हैं। फोम भी नहीं उधर से जो आ रहा है, हमारा पंजाब की साइड से, कश्मीर की साइड से फोम आता है, उसके रेट्स बढ़ गए हैं। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फर्नीचर सेक्टर को सब्सिडी दी जाए, ताकि न सिर्फ कारोबार बहाल हो बल्कि आम आदमी भी आसानी से फर्नीचर खरीद सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मलाइशिया से डिपोर्ट होने वाले मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क रवानगी की जाली स्टैंप लगी हुई थी। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर फैसल हुसैन फ़्लाइट नंबर OD 158 के ज़रिए मलाइशिया से कराची एयरपोर्ट पहुँचा, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है। सिस्टम में स्टैंप के हवाले से भी किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद न था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर ने दस्तावेज़ात मलाइशिया में रिहाइश पजीर एजेंट से हासिल की। मुसाफिर ने एजेंट से मजमूई तौर पर 1000 मलाइशियन रिंगिट के एवज़ सफरी दस्तावेज़ात हासिल की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी में कमसिन बच्ची से ज्यादती केस की समाअत हुई। पुलिस के अहम गवाह ने मुलजिम के खिलाफ अपना बयान कलमबंद करा दिया। मुलजिम बशीर को जेल हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया। गवाह ने गिरफ्तारी का मेमो, रोजनामचे की एंट्री और MLO का लेटर भी अदालत में जमा कराया। अदालत ने गवाह के बयान के बाद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया, जबकि अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी को भी बुला लिया। मुलजिम के खिलाफ रवा साल थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 साल पुराने कत्ल के मुकदमे के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में समाअत। मुलजिम ने तवील अरसे बाद अदालत में सरेंडर कर दिया। मुलजिम अदालत से अबूरी जमानत हासिल करके समाअत में हाजिर हुआ। केस के तफ्तीशी अफसर के अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर अब अबूरी चालान जमा करवाने की हिदायत की गई। नेशनल हाईवे अनवर बलोच होटल के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन के दोनों अतराफ से सड़कें बंद कर दी। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम। आपको बताएं कि मलिर सिटी थाने की हदूद में आवाम का एहतजाज, नेशनल हाईवे के दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। एहतजाज इंक्रोचमेंट की वजह से किया जा रहा है। पुलिस और आवाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। मंजिल पंप, कायदाबाद चौक, मलिर की जानिब बाग कोरंगी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज, सिंगर चौरंगी और अतराफ में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ये कुछ देर कबल की फुटेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेशनल हाईवे अनवर बलोच होटल के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन के दोनों अतराफ से सड़कें बंद कर दी हैं। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। आपको बताएं कि शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अनवर बलोच होटल के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन के दोनों अतराफ से सड़कें बंद कर दी हैं। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक भी जाम हो गई है। ये फुटेजेस आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर कबल की हैं, जिसमें हम वाज़े देख सकते हैं कि शहर कायद की ये अहम शाहराहें हैं। अहम शाहराहों के मुख्तलिफ फुटेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक फंसी हुई है और लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक निज़ाम की ही बात करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में दरहम बरहम हो गया है। शाहराह फैसल, बलोच पुल, गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहरुख शाह से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। शाहरुख हमारे साथ होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। शाहराह फैसल, बलोच पुल, गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। शाहरुख से रब्ता हुआ है, शाहरुख अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाह फैसल टाउन से, और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर एक एहतजाज हो रहा है मेन नेशनल हाईवे जो है वो अनवर बलोच की तरफ, जहाँ पे इलाका मकीन जो है वो इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वो इंक्रोचमेंट होने की वजह से बाहर निकले हैं, और उसके सबब जो सराउंडिंग है वहाँ पे इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ अगर वॉक थ्रू करे तो जो है वो दिखाएं। लोगों की गाड़ियां भी इस वक्त यहाँ पे बंद हुई हुई हैं, और अगर मैं कैमरामैन शरियार से रिक्वेस्ट करूं कि वो यहाँ पे आए और यहाँ का रुख जो है वो दिखाए, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो वॉक थ्रू भी जा रहे हैं। और हाँ शरियार, मैं अगर जो है वो बात कर लूं तो सर बताइएगा, कहाँ से आप लोग फंसे हुए, कितनी दूर से आप आ रहे हैं? सर हम तो आधे घंटे से फंसे हुए। हम 5 नंबर गए थे अपने कुली के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ। वहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। ये बहुत जाम हो रहा है। क्यों जाम? मोटरसाइकिल पे आप इतनी देर तक आप फंसे रहे? जी आधा पौना घंटे से फंसे हुए हम लोग यहाँ पर। तो एम्बुलेंसेज वगैरह भी फंसी हुई थी? नहीं, वो हमने आवाज नहीं सुनी एम्बुलेंस वगैरह की, वो मैंने आवाज नहीं सुनी। लेकिन ये नहीं पता क्यों जाम है ये। जी बिल्कुल, देखें अगर मैं आपको दिखाऊं, लोग मोटरसाइकिल पे भी जो है वो घंटों घंटों इस वक्त जो है वो परेशान हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हद निगाह जहां तक जो है वो जा रही है, वहां पे इस वक्त शाह फैसल के एतराफ में भी ट्रैफिक जाम है। और ये जो ट्रैफिक है वो इस वक्त देख सकते हैं कि मलिर जो मंजिल पंप है उसके करीब जो है वो जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये गाड़ियां भी जो है वो लोगों की खड़ी हुई हैं, जो स्कूल ऑफिस से यूनिवर्सिटी से जाने वाले जो लोग हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे जो है वो फंसे हुए हैं। गाड़ियों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि घंटों घंटों लोग खड़े हुए हैं। और मैं मजीद अगर लोगों से बात करूं, जनाब कब से फंसे हुए हैं, कितनी देर हो गई ट्रैफिक में? तकरीबन आधा घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ से। तो आपने जाना कहाँ था? मेरे को जाना मलिर है, कायदाबाद। पहले मलिर गए, वो अनवर बलोच से वो रोड भी सारा बंद है। वहां से तकरीबन 2 घंटे हमें लगे यहाँ पहुंचने तक। इतनी परेशानी है, एक तो रोड खराब है, आगे से पानी भी गिरा हुआ है, ऊपर से यहाँ है ये रोड भी सारा बंद पड़ा हुआ है। और बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और मुज़ाकरात जब तक नहीं होते, जब तक जो है वो एहतजाज खत्म नहीं होगा, तो आप लोग यहीं पे फंसे रहेंगे फिर? तो अभी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वहां तो गए, वहां तो लेडीज थी, बच्चे थे, हमने खुद उतर के देखे, तो फिर हम वहां से वापसी आ गए, क्योंकि वहां की उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि वो लोग रोड खाली करेंगे। तो इस वजह कहाँ से कितनी देर हो गई तुम्हें? भी 5 बजे से खड़ा हुआ है, अभी तक रोड बंद पड़ा हुआ है। 5 बजे से आप यहाँ पे मौजूद? वहाँ पर नहीं, वहाँ पर मलिर में वहाँ भी यहाँ पर आया, अभी यहाँ पर बंद हुआ है। मलिर से यहाँ पे आए हो? हाँ, अभी लोड गाड़ी खड़ा हुआ है सवाली की पैसेंजर।
جی بالکل دیکھیں یہاں پہ اس وقت شدید جو ہے وہ ٹریفک جام ہے اور لوگ ذہنی اذیت سے دو چار نظر آ رہے ہیں. فیملیز یونیورسٹی سے آفیسز جانے والے جو گھروں کو جانے والے لوگ ہیں وہ اس وقت خاصا پریشان نظر آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ روڈ ملیر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, ملیر قائد آباد کی طرف. ملیر قائد آباد جانے والے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, گھنٹوں سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت جو انور بلوچ کی سراؤنڈنگ میں احتجاج چل رہا ہے, شارع بھٹو کے سراؤنڈنگ میں, وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ پروٹیسٹ جاری ہے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے مظاہرین کا کہ جب تک ڈی سی ملیر جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے ہماری مذاکرات کی بات نہیں کرتے تو جب تک احتجاج جاری رہے گا. اور یہ جو شہری ہیں, جو مظلوم شہری ہیں, ان کو میں کہوں گا وہ یہاں پہ اس وقت گھنٹوں سے اس احتجاج کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. جی